کو بتائیں کہ بارش کے سامنے فیسکو کا ترسیلی نظام بے بس ہو گیا۔ 100 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی بند ہے۔ شہری پریشان ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں بارش کے سامنے فیسکو کا ترسیلی نظام بے بس ہو گیا۔ 100 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی بند ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بارش کے سامنے فیسکو کا ترسیلی نظام بے بس، 100 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی بند ہے اور شہری پریشان ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے کہ بارش کے سامنے فیسکو کا ترسیلی نظام بے بس ہے، 100 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی بند ہے اور شہری پریشان ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد میں بارش کے باعث فیسکو کے درجنوں فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ مختلف علاقوں میں 8 گھنٹوں سے بجلی کی فراہمی معطل۔ بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بارش کے بعد بجلی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا، ایسا کہنا ہے فیسکو حکام کا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں بارش کے باعث فیسکو کے درجنوں فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندہ اویس علی سے۔ جی اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ تیز بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ بارش کے پیش نظر فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہے۔ رات بھر سے فیصل آباد میں اسلامیہ پارک، گلستان کلونی، حاجی آباد، غلام محمد آباد، محمود آباد اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رحمت ٹاؤن، جنگ روڈ اور شیخوپورہ روڈ کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ صبح کے اوقات سے بھی ان علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جو ہے وہ جاری ہے۔ شہر کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پر 2-3 گھنٹے سے بجلی بند ہے۔ بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ رات بھر سے آپریشن سٹاف کو متحرک کر دیا گیا ہے اور جو فیڈر ٹرپ ہوئے ہیں ان پر بارش بند ہوتے ہی کام شروع کر دیا جائے گا۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ان کا ترسیلی نظام جو ہے وہ ایک بہترین ترسیلی نظام ہے، مگر جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو فیڈر ٹرپنگ جو ہے وہ معمول بن چکی ہے۔ اسی سلسلہ میں رات جیسے ہی بارش شروع ہوئی فیڈر ٹرپ ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت بھی جو ہے وہ 100 سے زائد فیڈر فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو میں ٹرپ کر گئے ہیں، جس کے پیش نظر نہ صرف فیصل آباد میں بلکہ فیصل آباد کی جو تحصیلیں ہیں ان میں بھی بجلی کی بندش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ بارش کے پیش نظر فیسکو کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ بارش جو ہے وہ لگاتار ہو رہی ہے، اسی وجہ سے شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی 1-2 گھنٹے سے بند ہے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ بجلی کی بندش کی وجہ سے ان کے معمولات زندگی جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب فیسکو کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ فیڈر ٹرپنگ پر جو ہے وہ کنٹرول پانے کے حوالے سے آپریشن سٹاف کو متحرک کیا گیا ہے۔ بارش کے سامنے فیسکو کا ترسیلی نظام بے بس ہو گیا ہے۔ اویس علی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سعید رضا، ترجمان فیسکو نے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا سر کہ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی بند ہے، بتائیے گا کب تک بحال کر دی جائے گی بجلی؟ یہ ہمارے جیسے جیسے بارش ختم ہو رہی ہے بحالی کا کام ہمارا بڑا تیزی سے جاری ہے، اور کل رات سے چیف ایگزیکٹو آفیسر اشرف منیر صاحب کی ہدایت پر کمپلینٹ سینٹر اور گریڈز پر جو ہے ہمارا سٹاف آلریڈی موجود تھا۔ اور جیسے جیسے بارش ختم ہو رہی ہے ہمارے فیڈرز کی بحالی شروع ہو گئی ہے۔ رات جو ہے وہ 100 سے زائد فیڈرز بند تھے اور اب تک صرف ہمارے پاس 36 فیڈر جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، اور وہ بند ہے جہاں پر بارش ہو رہی ہے۔ سعید رضا صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جیسی بارش ہونا شروع ہوتی ہے بجلی غائب ہو جاتی ہے، گھروں کا نظام متاثر ہوتا ہے، مطلب وہاں پہ گھروں میں جو روزمرہ کے ضروریات کے کام ہیں وہ رک جاتے ہیں، اسی طرح آفیسز میں بھی، تو کیوں اپ گریڈ نہیں ہو پا رہا؟ 21ویں صدی ہے اور جب بارش ہوتی ہے سسٹم جو ہے وہ جواب دے جاتا ہے۔ دیکھیں، جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے جس میں فیسکو کا ہے وہ ہمارا سارا اوور ہیڈ سسٹم ہے، اور اوور ہیڈ سسٹم میں جب بارش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ آندھی طوفان ہوتا ہے، درخت وغیرہ بھی گر جاتا ہے، لائن ٹرپ کر جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو کچھ ایسی لائنز ہیں جو ہم سیفٹی کے لیے بند کرتے ہیں تاکہ کسی کا جانی مالی نقصان نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے ہے ایشو۔ مگر ہم جو ہے وہ عارضی طور پر جو ہے وہ عوام سے معذرت خواہ ہیں، اور ہمارا جو سٹاف ہے وہ بالکل سیفٹی میجرز کے ساتھ جو ہے وہ بجلی کی سپلائی کے لیے جو ہے نا روا دوا ہیں۔ بجلی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی جیسے جیسے بارش رکتی جائے گی۔ ترجمان فیسکو سعید رضا آپ تفصیلات ہمیں بتا رہے تھے اور اپنا موقف بھی، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کرتے ہیں چرنیوٹ کا۔ بارش کے باعث فیسکو کے فیڈر سٹرپ کر گئے۔ بادشاہی مسجد، جمرہ روڈ، فیصل آباد روڈ، آسیہ فیڈر اور ہندوانہ سمیت بھوانا فیڈر کے متعدد علاقوں میں بجلی بند ہے۔
इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह। जी फसीउल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर इलाकों की तरह चिन्योट में भी वक्फे वक्फे से कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात से जारी बारिश की वजह से बेशतर ऐसे इलाके हैं जिसमें देहाती इलाके भी शामिल हैं, जबकि शहरी इलाके भी शामिल हैं, जहां पर 10-10 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल देखी जा रही है। शहरी इलाकों की बात की जाए तो उसमें मौजमाबाद फीडर का इलाका है, इसके अलावा फैसलाबाद रोड, आसिया फीडर, बादशाही मस्जिद का जो फीडर है, वहाँ पर बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली का निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया। और अगर फैसलाबाद रोड की बात की जाए तो यहाँ भी गुज़श्ता रात 1 बजे के बाद जो लाइट गई थी वो 10 बजे के बाद बहाल हुई और उसके बाद से अब तक जो है वो आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से फेस्को इंतजामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जितना भी जो काम जारी है टेक्निकल खराबी की वजह से जो बिजली के फीडर बंद हुए हैं उसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाएगा। चूंकि बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, इस वजह से काम का जो है वो तरातुर बरकरार रखने में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और उनका कहना है कि जैसे ही बारिश मुकम्मल तौर पर रुकेगी तो तमाम इलाकों में जहां जहां पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है उनको बहाल कर दिया जाएगा। ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि जैसे ही बारिश रुकेगी आगाज कर दिया जाएगा बिजली की बहाली का। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश वासा की नाअहली के बायस शहरियों के साथ मरीजों के लिए भी जहमत का बायस बन गई। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की पहली बारिश वासा के नाअहली के बायस शहरियों के साथ साथ मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए जहमत का बायस बन गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनरल अस्पताल समनाबाद के बाहर और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि आपको जनरल अस्पताल समनाबाद के बाहर बारिश का पानी ही पानी नजर आएगा। और ऐसे में जिस मरीज़ ने अस्पताल में जाना है तो उसे मेरी तरह बारिश के पानी में से गुजर के ही जो है वो अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। यहाँ पे मरीज़ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। जी बाजी, कहाँ से आई हैं? अस्सलाम वालेकुम, हम आए हैं उधर से नज़ीर खां की 24 से, तो यहाँ उधर से आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश का पानी खड़ा है, सवारी के बगैर नहीं आ सकते, तो अंदर जाने के लिए भी बड़ी मुश्किल है। तो चाहिए हुकूमत को कि इसका नोटिस लें। बिल्कुल, कम अज़ कम ऐसे इलाके जो कि हस्पताल हों और यहाँ पे मरीज़ इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हो, तो ऐसे मकामात पे जो है वो मरीज़ों का ये कहना है कि पानी जो है बारिश का नहीं होना चाहिए ताकि मरीजों को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, ताकि मरीजों को मुश्किलात का ना सामना करने पड़े। आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में सर्दियों की बारिश, शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। इस्लाम नगर, इकबाल स्टेडियम, समुंदरी रोड, मंडी रोड, इंसाफ रोड, स्टेशन चौक, सूंसा रोड, मदीना टाउन, गुलिस्तान कॉलोनी, जामिया चिश्ती चौक, झुमरा रोड, डिजकोट रोड, गुलाम मोहम्मद आबाद समेत शहर के 17 नशेबी मकामात पर पानी ही पानी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 12 घंटे गुजर चुके हैं और रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी नहीं थम सका। हम इस वक्त मौजूद हैं मिल्लत रोड पर, जहां पर तहद्दे निगाह जो है वो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हसन, आपको दिखा भी सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त पानी से गुजर कर जा रही हैं और इस मिल्लत रोड के ऊपर मिल्लत चौक में पानी मौजूद है, जामिया चिश्तिया चौक में पानी मौजूद है और इसके साथ साथ जितने भी मुल्हिका इलाके हैं वहां पर पानी मौजूद है। तकरीबन फिल वक्त जो है ये 35 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और जिससे शहर के 17 इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त भी जो है वो मूसलाधार बारिश जारी है और उम्मीद ये की जा रही है कि अभी चंद घंटे मजीद फैसलाबाद में बारिश जो है वो बरसेगी। इस बारिश के बाद जो है वो फैसलाबाद शहर का हुलिया जो है वो बिगड़ता हुआ महसूस हो रहा है। LCM स्कूल, समुद्री रोड, मंडी मोड़ के इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस्लाम नगर, इकबाल स्टेडियम भी इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसके साथ साथ फैसलाबाद के जो दीगर शहराहे हैं वहाँ पर भी मेन शहराहे जो है वो ज़ेरे आब हैं। वासा की टीमें कहीं कहीं पर मौजूद हैं लेकिन पानी की निकासी जो है वो फिल वक्त यकीनी नहीं हो सकी। जी, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से फैसलाबाद के मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा शाहिदा घुमन से। जी शाहिदा, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में रात से होने वाली मूसलाधार बारिश जो है वो अभी भी जारी है, जिससे फैसलाबाद के जो मुतअद्दिद इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। नशेबी इलाकों में खास तौर पर जो है पानी जमा है, तो इस वक्त जो मुख्तलिफ रोड्स हैं वो भी पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त लारी डैम में मौजूद है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे गाड़ियों की जो है वो लंबी कतारें लगी हैं। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे अगर ये 10 घंटे से मुसलसल होने वाली बारिश ने जो है फैसलाबाद का
हुलिया जो है वो बिगाड़ दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद भी बारिश बरसेगी, जिससे जो है वो फैसलाबाद का जो जितने भी निशेबी इलाके हैं वो पानी में डूब जाने का खदशा जो है वो जाहिर किया जाएगा। इसके साथ साथ फेस्को का जो तरसीली निज़ाम है वो भी मुतासर हुआ है, वो भी बारिश के पानी में डूब गया है, जिससे जो है वो फैसलाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो बिजली भी मुअत्तल हो गई है। शहरियों को भी परेशानी का सामना है और मुख्तलिफ जो रोड है जिनमें जड़ा वाला रोड है, सुफियाना रोड है, मिलत रोड है, लारी है, इसके साथ साथ दीगर निशेबी इलाके जो है पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। शाहिदा घुमन, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात से होने वाली बारिश के बायस शहरियों को निकासियाब के मसाइल का सामना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश के बाद पानी ही पानी नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में जड़ा वाला रोड भी शामिल है। यहाँ पर बारिश के बाद सूरत हाल ये है कि मेन सड़क पर पानी खड़ा हो चुका है और आमतौर में शहरियों को, राहगीरों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इस सड़क का जो अहम मसाला है वो ये है कि इस सड़क के साथ जो बरसाती नाला बनाया जाता है वो नाला बंद है। उसकी वजह से निकासी आब का निज़ाम जो है वो गैर फाल हो चुका है और इसी वजह से ये बारिश का पानी जो है वो सड़क पर मौजूद है। यहाँ पर जड़वाला रोड पर जो है वो सड़क वन वे इस्तेमाल की जा रही है। मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ियाँ और दोनों अतराफ से आने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो आमने सामने से होती हुई यहाँ से गुजरती हैं, जिस वजह से हादसा भी हो सकते हैं। एक सड़क पानी की वजह से, बारिशी पानी की वजह से सड़क की एक तरफ जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और शहरी वन वे इस्तेमाल करते हुए जो है वो ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है वो जाने पर मजबूर हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि जब भी बारिश बरसती है यहाँ पर यही सूरत हाल होती है और कोई भी इनका पुरसाने हाल नहीं है। मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि वो फिलफौर हरकत में आएँ और इस तरह का जो अहम मसला होता है, जो अवामी मसला होता है जिससे फीसदियों शहरी जो है वो मुतासिर होते हैं, उसको तरजीही बुनियादों पर हल करवाया जाए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योज में होने वाली बारिश ने जल थल एक करती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया बारिशी पानी की निकासी करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योड शहर और गिरदोनवा के इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। देखा जा सकता है कि फैसलाबाद रोड, जुमरा रोड और इसके अलावा मोहल्ला गफूराबाद, मोहल्ला दिलखुशाब और शहर की अंदरूनी गलियां, बाजार जो है वो बारिश के पानी में डूब चुकी हैं। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये फैसलाबाद रोड है और यहाँ पर बारिश का पानी जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रहा है। राहगीरों को गुजरने में शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। इस सवाल से जो शहरी है उनका गुजरना भी मुहाल हो जाता है। बाज़ औक़ात जब भी बारिश आती है तो फैसलाबाद रोड और जुमरा रोड पर जो है वो दरिया का जो है वो नज़ारा होता है। इस सवाल से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। बाजार बताइएगा, बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है, क्या हुकूमत से, इंतजामिया से मुतालबा करना चाहेंगे? भैया ये हमारी फैसलाबाद चिन्योड जो है इधर पानी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमें गुजरने में बहुत दुश्वारी हो रही है। मोटरसाइकिल पे जाते हैं, मोटरसाइकिल आगे पानी में जाके बंद हो जाता है। इस वजह से हमारे हुकूमत से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इसका इंतजाम किया जाए। ये अब भी पानी पाँव में आ रहा है सारा, कोई हाल देखा जा सकता है कि बारिश का पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। काफ़ी जो है वो मुश्किलात दरपेश है। शहरियों का ये कहना है कि जब भी बारिश आती है फैसलाबाद रोड, जुमरा रोड और दीगर जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं और ये कोई दरिया की लहरें नहीं है, ये बारिश का पानी है। इंतजामिया की जानिब से निकासी आब को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। इस सवाल से जो शहरी है उनका ये मुतालबा है कि बारिश के पानी की जो है वो निकासी की जाए ताकि शहरियों को गुजरने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। बारिशी पानी जमा है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अब्दुल कदीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी डिवीजन भर की तरह अगर टोबा टेक सिंह की भी बात करें मौसम के हवाले से, तो शहर में रात से वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त बारिश थमी हुई है, ताहम महकमा मौसमियात का कहना है
کہ آج سارا دن مختلف اوقات میں ہلکی بارش کا امکان رہے گا. موسم کافی بہتر ہو چکا ہے. اس وقت جو شہر کا درجہ حرارت ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کم سے کم یہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی موسم اسی طرح جو مطلع ابر آلود رہے گا اور وقفے وقفے سے بارش بھی ہوتی رہے گی. بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں جو فیڈرز ہیں بجلی کے وہ بھی ٹرپ ہوتے رہے، جس کی وجہ سے آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا اور خاص طور پہ جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر پانی بھی جمع ہوتا رہا. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا وقار گھمن ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنگ کی ضلع کچہری میں کئی دہائیوں سے موجود سیوریج مسائل اب ختم ہونے کی امید پیدا ہو گئی. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں اویس خان سے. اویس بتائے گا مسائل ختم ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے. بالکل جنگ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی کاوشوں کے بعد جو ہے ضلع جنگ میں کچہری میں سیوریج کے مسائل پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. ضلع کچہری میں سیوریج کا مسئلہ جو ہے وہ عرصہ دراز سے موجود تھا، جس کے باعث بارشوں کے بعد جو ہے وہ ضلع کچہری جو ہے وہ کسی تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی تھی. تاہم اس حال سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کی جانب سے اور صدر بار ایڈوکیٹ علی رضا ترمذی کی جانب سے ضلع انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کی گئی اور اس سیوریج کا مسئلہ حل کرنے کے حوالے سے اقدامات کرنے کے حوالے سے جو ہے ان کا آگاہ کیا گیا ہے. جس کے بعد جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے گیٹوں کے پاس موجود جو سیوریج لائنز ہیں اس کی درستی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ صدر بار ایڈوکیٹ علی رضا ترمذی کی جانب سے ڈپٹی کمشنر جنگ طاہر بٹو کو جو ہے وہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ جو ورلڈ بینک کے زیر اہتمام چلنے والا میگا پروجیکٹ ہے سیوریج کے متعلق جو ہے اس میں بھی ضلع کچہری کا سیوریج پلان ہے وہ شامل کیا جائے، تاکہ بڑی تعداد میں آنے والے یہاں پہ جو وکلا ہیں اور جو سائلین ہیں ان کو روزانہ کی درپیش مشکلات سے چھٹکارا مل سکے. ضلع کچہری میں سیوریج لائن جو ہیں وہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ مرمت کا عمل مکمل نہیں کیا جا سکا تھا، جس کے بعد خاصی حد تک مشکلات کا سامنا تھا. تاہم ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کے اس اقدام کے بعد امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سیوریج کے مسائل بڑی حد تک قابو پانے میں مدد مل سکے گی. اویس خان آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ابھی رخ کریں گے کمالیہ کا. کمالیہ میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے. اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندہ رضوان خان سے. جی رضوان اپڈیٹ کیجیے گا. اور اس کے گرد و نواح میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے. بارش برسنے جہاں پر موسم خوشگوار ہو گیا تو ساتھ ہی ساتھ سردی کی شدت میں بدستور اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بارش برسنے سے جہاں پر موسم خوشگوار ہوا ہے تو وہیں پر جو ہے درختوں اور پودوں کے پتوں پر جو جمی ہوئی مٹی اور دھول تھی وہ بھی دھل کر صاف ہو چکی ہے. ہر طرف جو ہے سبزہ اور ہریالی دکھائی دے رہی ہے، جس کی وجہ سے شہری ہیں خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں. محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 2 روز میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی جا رہی ہے. تاہم جو ہے سردی کی شدت میں جہاں پر اضافہ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ شہریوں کے چہرے ہیں وہ بھی جو ہے خوشی سے کھل اٹھے ہیں، کیونکہ جو ہے خشک سردی کی وجہ سے مختلف قسم کی جو ہے بیماریاں جس میں کھانسی نزلہ زکام وغیرہ بھی تھا وہ ان کی شکایات سامنے آ رہی تھی. لیکن بارش برسنے سے موسم بھی مکمل طور پر کھل چکا ہے اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. موسم خاصا جو ہے سہانا ہو چکا ہے. جی بہت شکریہ رضوان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور آپ کو بتائیں دھاگے کے ریٹ میں تیزی آ گئی. جینین ملز مالکان کا ماننا ہے کہ روئی کی پیداوار میں شدید کمی دھاگے کے ریٹ میں اضافے کا باعث بن رہی ہے. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ سٹی 41 شراز بٹ سے. شراز آگاہ کیجیے گا. جی بالکل اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے بات کی جائے تو فیصل آباد جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور خاص طور پہ دھاگے کے ریٹ سے جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر حافظ انجینئر احتشام جاوید میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے اور جانتے ہیں کہ دھاگے کے ریٹس بڑھنے کی وجہ صرف اور صرف کیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے یا پھر جو روئی کی پیداوار انتہائی کم ہوئی یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے. گفتگو کرتے ہیں. احتشام جاوید میرے ساتھ ہیں. احتشام بھائی 18-19 ہزار روپے کا بورا جو ہے وہ 28 ہزار پہ چلا گیا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ صرف اور صرف ڈیمانڈ سپلائی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی یہ وہی بات ہے جو ہمیں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں کہ گورنمنٹ کو کارٹلائزیشن، یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، ہماری گورنمنٹ بھی یہی بات کرتی ہے کہ گورنمنٹ کو کارٹلائزیشن کو ختم کرنا ہے. یہ بھی وہی کارٹلائزیشن کا دس از دا بیسک ون ریزن آف دا کارٹلائزیشن. وہ کہہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کاٹن کے اوپر سے ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ختم کی. ٹھیک ہو گیا جی. کاٹن کی امپورٹ کے اوپر آپ کے ہاں پیداوار کم ہوئی، کاٹن امپورٹ کرنی پڑی، آپ نے ایڈیشنل کاٹن ڈیوٹی ختم کر دی. اب دھاگے کے اوپر سے بھی آپ نے ایڈیشنل کاٹن کسٹم ڈیوٹی ختم کی، لیکن اس کے درمیان جو ختم کرنے کا گیپ ہے وہ 1.5 مہینے کا ہے. دونوں کو ختم کرنے کا جو گیپ ہے وہ 1.5 مہینے کا. اس کا مطلب ایک
स्पेसिफिक सेक्टर को, क्लस्टर को आपने प्रिविलेज फिर दे दी कि वो अपनी मनमानी करे, अपनी मनमानी से वैल्यू एडिशन सेक्टर के ऊपर जो आपको वही धागा जब आप उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करेंगे तो 5 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट के पैसे मिलेंगे, और इसके साथ साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर आपके पूरे मुल्क के कपड़े की जरूरत भी पूरा करता है। बजाय कि आप उसकी तरफ जाते आपने फिर उसी को पर्क्स एंड प्रिविलेज दे दिए। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीजें अच्छे ट्रैक पे हैं, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपना काम करना पड़ेगा। आपको लगता है कि फैसले जो हैं वो बर वक्त नहीं होते? मैंने तो वही कहा ना जी कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, रेगुलेटरी अथॉरिटी को काम अपना करना पड़ेगा, हर इदारे को अपने हिस्से का काम। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है। डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम क्यों आ गया? जब गवर्नमेंट पर्क्स दे रही है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू छोड़ रही है ना, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू छोड़ रही है। किस लिए छोड़ रही है? क्योंकि चीजें सस्ती मिलें, लोगों को फैसिलिटेशन मिले, इसलिए नहीं कि नफे बढ़ जाएं। तो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि वी शुड लुक इनटू इट कि हमें अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए उस क्लस्टर को, उस चंक को रेगुलेट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो आपका डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद बैठा हुआ है, उसको ऑन ग्राउंड जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑन ग्राउंड जाना पड़ेगा। कुछ रियलिटी, कुछ बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट हैं जो कि इंडस्ट्री की हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हुए इंजीनियर एहतशाम जावेद ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से गवर्नमेंट को आगाह किया है कि फैसले बर वक्त होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कार्टेलाइजेशन है, उसको। धागे की रेट में तेजी आई है। शिराज भट्ट आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि कोरोना के सनत व मईशत पर वार जारी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंशा ने अचानक कमालिया शुगर मिल का दौरा किया है और गन्ने की पेमेंट के हवाले से जीएम शुगर मिल को किसानों के फौरी मसाइल का हल करने की हिदायत जारी की है। सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद सराफा बाजार से मुल्हिका बाजार का काम शुरू कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अजमत बलोच से। जी अजमत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी 41 हमेशा से अवाम को जो मसाइल हैं उनको उजागर करता रहा है और अवाम की आवाज़ बनता रहा है। 2 जनवरी को सिटी 41 पर खबर नशर की गई थी सराफा बाज़ार के साथ जो मुल्का बाज़ार हैं, जिनके अंदर सराफा बाज़ार की वजह से सीवरेज का पानी जो खड़ा होना शुरू हो गया था और दुकानदारों को इससे काफ़ी मसाइल बनना शुरू हो गए थे। तो आज इस बाज़ार का जो काम है वो शुरू हो गया। मज़ीद इस वक्त मेरे साथ जो इस बाज़ार के दुकानदार हैं वो मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी, हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं सिटी 41 के, जिन्होंने हमारी आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाई। हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं इस टीम के जिन्होंने हमारी फरियाद सुनी, और हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं इंतज़ामिया के जिन्होंने काम शुरू करवा दिया। जिंदाबाद सिटी 41। बहुत शुक्रिया अजमत बलोच हमें अपडेट करने के लिए। हुकूमत पंजाब की जानिब से सी पैक के रास्तों से तुरशादा फलों की बरामदात में इजाफे के लिए इकदाम शुरू करने का फैसला कर लिया है। इसी फैसले के हवाले से जान लेते हैं वसीम अहमद से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत ने सी पैक से भी भरपूर फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया है और महकमा ज़राअत ने इस हवाले से जो मंसूबा बनाया है उसमें फ़लों के बागात जो है वो लगाए जाएंगे। पंजाब भर के अंदर फ़लों के बागात के लिए लगाने के लिए महकमा ज़राअत ने तमाम अजला से जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है कि किस शहर के अंदर किस चीज़ का बाग लगाया जा सकता है। इस हवाले से स्टेट लैंड के भी जो तजवीज़ है वो दी गई है कि तमाम जितने भी अजला है वहाँ पर जितनी भी सूबाई ज़मीन मौजूद है या डिस्ट्रिक्ट ज़मीन मौजूद है उस पर जो है ये फलों के बागात लगाए जाएंगे। और इस हवाले से तफसीलात जो है वो सेक्रेटरी ज़राअत ने असद गिलानी ने जल्द अज जल्द तमाम अजला से जो है वो तलब कर ली है। इस हवाले से जो मरासला जारी किया गया उसमें हिदायत जारी की गई है कि जल्द अज जल्द जो जगह का तयन है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट ज़राअत ऑफिस जो हैं वो करें, ताकि सी पैक के स्टार्ट होने से पहले जो है वो तमाम अजला के अंदर जो बागात हैं वो कायम कर दिए जाए, बागात लगा दिए जाके, ताकि पाकिस्तान से पंजाब से बिलखसूस फलों की एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफा किया जा सके। जी, तुरशादा फलों की बरामदात में इजाफे के लिए इकदाम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। ब्यूरो चीफ जंग आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया आपका।